السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں پیر کی رات اور جنوری کی 5 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور جنوری کی 6 تاریخ ہے۔ ناظرین، سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر پاکستان سے ہے، جہاں پر کہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر بہت زیادہ انڈر پرفارم کر رہا ہے، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس میں پریشان کن حد تک دسمبر کے مہینے میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں دسمبر کے مہینے میں 20.4% کمی آئی، اور یہ 5واں مہینہ ہے کہ مسلسل پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے۔ ایک طرف اگر ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستان کی امپورٹس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جو امپورٹس ہیں وہ اسی ماہ کے دوران تقریباً 6 ارب ڈالر کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 25% اضافہ ہوا، اور یہ تقریباً 3.7 ارب ڈالر تک پہنچا۔ جولائی اور دسمبر کے دوران یہ جو 6 مہینے تھے، اس میں پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 35% بڑھا، 35%، جو کہ سٹیگرنگ نمبر ہے۔ ڈالر اماؤنٹ اس کی 19.2 ارب ڈالر ہے۔ اور پاکستان جو ہے، اس نے اپنی اکانومی اس دوران دو چیزوں پر چلائی: یا تو اسٹیٹ بینک نے لوکل مارکیٹ سے کرنسی خریدی تاکہ اپنے کرنسی کی کمی کو پورا کر سکے، اور یا پھر پاکستان نے جو باہر بیٹھے پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، اس پر اپنا گزارا چلایا، یا پھر قرضے لیے۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے، آج کی حقیقت، جس پر پاکستان کی ریاست، ریاستی ادارے، حکومت اور حکومتی ادارے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ ہر کوئی یا تو جیو پالیٹکس میں لگا ہوا ہے، یا دبا کے بیرونی دورے کیے جا رہے ہیں، جہاں پر کہ پاکستان کی جغرافی کو بیچے جانے کی ایک مرتبہ پھر کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان کا مال بازاروں میں، کھیتوں کھلیانوں میں سڑ رہا ہے۔ وجہ، ریاست اور حکومت اتنی نااہل ہے کہ وہ اس سیکٹر کو بالکل سپورٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ یعنی حالیہ دنوں میں پاکستان کی جو مختلف جو بزنس سیکٹر، اسپیشلی جو اسمال بزنس، ان کی تازہ ترین رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ چھوٹے کاروباری ادارے جو ہیں، وہاں پر نوکریوں میں زبردست قسم کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کاروبار جو گزشتہ سال جو چھوٹے کاروباری ادارے تھے، ان کے 80% نے کاروبار میں نقصان کیا۔ تو یہ تو اندرون خانہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ 20%، اگر کسی اور ملک میں کسی ملک کی ایکسپورٹس کم ہوتی، تو اس ملک کے فائنانس منسٹر کو فائر کر دیا جاتا، اس کو گھر بھیج دیا جاتا کہ جناب، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی بھی آپ کی اکانومی کی ٹیم ہے، اس کو فائر کر دیا جاتا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ملک کا آلریڈی اتنا برا حال ہے، وہاں پر غربت اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، اور آپ اتنا زیادہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں، تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت بند کی ہوئی ہے، وہ ایریا جہاں سے کہ پاکستان ہر سال 1 ارب ڈالر کا منافع کماتا تھا، تقریباً آلموسٹ 2 ارب ڈالر کی تجارت تھی، لیکن ہم نے وہ بند کر دی۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، اس میں اس کے امپیکٹ پر اب بات ہو رہی ہے کہ امپیکٹ اس کا کتنا شدید ہے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ دوست اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی، آپ روزانہ افغانستان کے ٹریڈ پر بات کرتے ہیں۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ انتہائی پریشان کن بات ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس اگر نیچے جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اتنا پیسہ نہیں کما رہا جتنا اس کو چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبے گا۔ یعنی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، ڈان میں چھپی ہوئی تھی، کہ جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لیے چونکہ بند ہیں، اور انہوں نے صرف آلو کی مثال دی تھی کہ پاکستان کی جو فائنینشیل ایئر 2025 تھا، اس میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی وہ 90 ملین ڈالرز کی تھی، لیکن چونکہ سرحد بند ہو گئی تو جو آلو کے کاشتکار ہیں، ان کو 1 لاکھ روپے فی ایکڑ نقصان ہوا، اور کہتے ہیں کہ کوئی 9.5 لاکھ ایکڑ پر جو ہے یہ آلو کاشت کیا گیا تھا پاکستان میں۔ تو اگر آپ اس نقصان کو کیلکولیٹ کریں، تو یہ تقریباً 350 ملین ڈالر بنتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈان کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک آلو کی جو فصل ہے، جو ہم ایکسپورٹ نہ کر پائے، تو اس کا امپیکٹ اتنا گہرا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے سٹرس ہیں، جس طرح ہمارے کینو وغیرہ جو ہیں، ان کی فصل کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ایکسپورٹس بند ہیں۔ نہ ہمارے کینو اور دوسرے سٹرس فروٹس جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں، نہ سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سٹرس کی جو قیمتیں ہیں، اس میں 50 سے 80%
कमी आई है। यानी मुझे एक सिट्रस बाग के मालिक बता रहे थे कि उनका लास्ट ईयर जो बाग 80 लाख में बिका था, वो इस वक्त कोई 40 लाख में भी नहीं लेने वाला, खरीदार ही नहीं है। वजह, क्योंकि जब आपका एक्सपोर्ट सेक्टर, आपने एक बड़ी मार्केट खुद ही बंद कर दी, तो उसका फिर क्या बनेगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, यानी ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल भी पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे जो बिजली के और दूसरे जो हमारे इनपुट्स हैं, उन पर जितने टैक्सेस लगाए गए हैं वो इतने महंगे हैं कि उसके साथ मुनाफा कमाना पाकिस्तान में किसी भी कारखानेदार के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और मुल्क में अब कुछ तबकात ऐसे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी एनर्जी, इंडस्ट्रियल और ट्रेड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, यानी इन पॉलिसीज में आप कोई रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, भूल जाएं कि पाकिस्तान में रिकवरी मुमकिन है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये मजीद बढ़ेगा और पाकिस्तान मजीद कर्जों के बोझ तले जाएगा। पाकिस्तान के चूंकि मामलात अफगानिस्तान के साथ भी आजकल काफ़ी बुरे हैं, और कुछ ऐसी ही खबरें अब चीन से आ रही हैं जहां पर कि पाकिस्तान और चीन का 7वां फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुकम्मल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सागडार साहब ने शिरकत की। और वहां पर जो उसके बाद कम्युनिके या जो एलामिया जारी हुआ, उसमें वैसे तो बहुत सारे नुकात हैं लेकिन उसमें दो तीन नुकात बहुत अहम हैं। एक तो उसमें अफगानिस्तान के हवाले से जिक्र है कि जहां पर मुतालबा किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से, बहुत सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से अफगान हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी शराकत दारी पर मबनी एक हुकूमत बनाई जाए। इस एलामिये में अफगान हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो ऐसे विजिबल और वेरीफाइबल एक्शंस करें, यानी ऐसी पॉलिसीज को अपनाएं जिनके जरिए अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें वहां पर मौजूद हैं, उनको खत्म किया जा सके। और इसके लिए जरूरी है कि अफगान हुकूमत पूरी दुनिया को दिखाए कि हाँ, ये हम कर रहे हैं। एक और जो अहम नुक्ता था, जिसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई लेकिन ये जरूर जिक्र हुआ कि सी पैक 2.0 का जिक्र हुआ कि इसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। और इसमें आप जो ज्यादा फोकस होगा वो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और गवादर पोर्ट पर होगा। लेकिन इसके अगेन डिटेल्स नहीं मालूम कि इसके तहत 2 जो सी पैक का दूसरा मरहला है बड़ा, इसमें क्या क्या चीजें डिलीवर होंगी, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इसमें बहुत सारी और भी वजाहतें सामने आए, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो। तो फिलहाल प्रोजेक्ट्स का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इन प्रिंसिपल जो फैसला हुआ है वो ये कि सी पैक 2.0 पर, या दूसरा जो मरहला है उसका, उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो इस बयान में जितने भी नुकात हैं, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और चीन के हवाले से हमेशा, यानी ताइवान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी का अदा या कश्मीर डिस्प्यूट का जिक्र, ये तमाम चीज़ें बीच में शामिल हैं। तो ये जो ओवरऑल मीटिंग थी बहुत अच्छी थी, एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान अमेरिका और दूसरी मगरबी कुव्वतों के ज्यादा करीब जा रहा है, अरबों के ज्यादा करीब जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन चीन के हवाले से ये ख्याल था कि शायद चीन में उनकी क़यादत पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी से ज्यादा खुश ना हो। तो ये जो मीटिंग है बहुत अहम थी। और अब थोड़ा जिक्र अमेरिका का, जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो सर ट्रंप ने भारत को धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद न किया तो अमेरिका इनके ऊपर टैरिफ्स को मजीद बढ़ा देगा। याद रखिए कि भारत और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता कई माह से तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अब तक उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। और इसीलिए अब तक भारतीय अशिया पर अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रही हैं, उन पर 50% टैरिफ आज भी आयद है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उनका एक बयान सामने आया है। और वो कहते हैं कि जनाब, चाहिए ये कि वो ममालिक जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, उनके ऊपर ट्रंप हुकूमत को चाहिए कि उन पर 500% टैरिफ्स लगाएं। तो भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। और ट्रंप जो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको पॉइंट आउट करते चले आ रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत की जानिब से भी अब कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि उनकी कोशिश है कि रूस से तेल की खरीदारी में कमी लाए। कितनी कमी ला सकता है भारत, ये अभी वाजे नहीं है। लेकिन इस वक्त रूस से अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है तो वो भारत है, और साथ चीन भी काफी तेल उनसे खरीदता है। और अब चलते हैं आज की आखिरी दो खबरों की जानिब, जो कि न्यूयॉर्क से हैं। आज न्यूयॉर्क में दो बड़े वाकयात हुए। एक तो ये कि वेनेजुएला के सदर आ, निकोलस मदुरो को आज न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की एक अदालत में पेश किया गया, जहां पर कि उनको उनके ऊपर लगाए गए जो जराइम हैं वो पेश किए गए, उनको सुनाए गए वो कि ये आपके ऊपर ये जराइम है। और उनसे पूछा गया कि क्या आप ये जुर्म मानते हैं।
तो मदुरो ने उन तमाम जराइम की सेहत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर ये झूठे इल्ज़ामात हैं। वहाँ पर जब जज ने उनसे पूछा कि आप, यानी ये तरीका है अमरीकी अदालतों का कि जब एक मुल्ज़िम को अदालत के सामने लाया जाता है तो जज उनसे पूछता है कि पहले आप अपना तारुफ कराइए कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो जब मदुरो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम निकोलस मदुरो है, मैं वेनेजुएला का सदर हूँ और मुझे अगवा किया गया है। और फिर उसके बाद वो मजीद बात भी करना चाहते थे, लेकिन जज ने उन्हें कहा कि आपको मजीद बातों के मौके मिलेंगे, फिलहाल आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। मदुरो को जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनको जब हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रुकलिन की जो डिटेंशन फैसिलिटी है वहां से मैनहट्टन लाया गया, तो वहां पर जो विजुअल्स आए उसमें नजर आ रहा था कि उनको शायद हथकड़ियां पहनाई गई थी। लेकिन जब उनको अदालत में पेश किया गया तो बीबीसी के मुताबिक उनको बेड़ियां पहनाई गई जिसकी आवाज अदालत में सुनी जा सकती थी। अदालत में मदुरो और उनकी अहलिया ने इन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और कहा कि वो शरीफ आदमी हैं और उनका इन जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखते ही हैं, क्योंकि ये तो मुकदमा चलेगा, इस पे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी पेशियां होंगी। अभी अगली पेशी में कुछ दिन हैं और इस दौरान में अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस है, दुनिया में बहुत ज़्यादा बहस है। लेकिन सबसे बड़ी बहस का मरकज़ आज अक़वाम मुत्तहिदा था, जहाँ पर के जो सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास जो बुलाया गया था वेनेजुएला और कोलंबिया की जानिब से, वहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म तकारीर हुई। वहाँ पर अमेरिका के दोस्त ममालिक ने भी अमेरिका पर बराह रास्त या बिला वास्ता तनकीद की और इस खौफ का इजहार किया कि जिस तरीके से मदुरो को गिरफ्तार किया गया है, तो ये एक खतरनाक मिसाल कायम की गई है। चूंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, तो वहाँ पर ख्याल तो ये था कि पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन सफ़ीर नहीं थे मौजूद, बल्कि उनके डेप्यूटी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उस्मान जदून, वो वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने एक कमज़ोर सा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है और हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, अब वगैरह वगैरह। कोई ऐसा खास बयान नहीं था। जो खास बयान था वो शायद चाइना की जानिब से आया था। चीन, रूस, कोलंबिया, ये वो तीन ममालिक थे जिनकी जिनके जो मंदूबीन थे उनकी तकारीर काफ़ी सख्त थी। चीन के जो मंदूब थे उनका कहना था कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला की सॉवरेनिटी को, आज़ादी को वायलेट किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लैटिन अमेरिका अमेरिका की कॉलोनी नहीं है, लातीनी अमेरिका अमेरिका की कॉलोनी नहीं है, ये तो जोन ऑफ पीस है, यहाँ पर तो अमन होना चाहिए। तो ओवरऑल आज लगता ये था कि अमेरिका वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। लेकिन जो अमेरिकी मंदूब थे उन्होंने अमेरिकी पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। और उनका कहना था कि ना तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, ना कब्जा करना चाहता है, बल्कि वेनेजुएला में एक मतलूब शख्स था जिसको गिरफ्तार किया गया। तो ये बेसिकली एक लॉ एनफोर्समेंट की कार्रवाई थी। यही ट्रंप हुकूमत का बड़ा बयानिया है जो कि हम शुरू दिन से सुन रहे हैं और आज भी वो सुना। तो यूं मुझे लगता है कि मदुरो के हक में वेनेजुएला में भी कुछ मुजाहरे हुए हैं। और आज जब मदुरो को अदालत में पेश किया गया तो अदालत के बाहर भी उनके मुखालिफिन और उनके ऐसे लोग जो कि उनकी गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका किसी नई जंग में शामिल ना हो। लेकिन महसूस ये होता है कि सर ट्रंप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो आज जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो कुछ देखा गया, उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो तक़सीम शुरू हुई है, जिसका मैंने कल ज़िक्र किया था, मुझे लगता है कि ये तक़सीम मज़ीद गहरी होगी। तो आज के यूनाइटेड नेशंस के इजलास के बाद, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, लेकिन ये मेरा ख़्याल है सिर्फ़ एक तकारीर थी, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन वो नतीजा जो कि कल जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि इस वाक़ये के बाद दुनिया में तक़सीम बहुत गहरी हो गई है, और अब वो तक़सीम ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है और शायद ये मज़ीद नज़र आए। क्या इससे मज़ीद इंटरनेशनल टेंशन्स बढ़ेंगी? क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करेगा? क्योंकि लगता ये है कि वहाँ पर जो अब डेल्सी रोड्रिगेज़ जो कि नायब सदर थीं और अब उन्होंने एज़ इंटरिम प्रेज़िडेंट जो है हल्फ़ भी उठा लिया है। गरचे उन्होंने सर ट्रंप के साथ काम करने का इंदिया दिया है, लेकिन वहाँ पर भी खौफ ये है कि शायद जो हुकूमत है उसमें तक़सीम है। अगर डेल्सी रोड्रिगेज़ बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीब जाती हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा, या अमेरिका के मुखालफत वहाँ पर मज़ीद बढ़ेगी? क्योंकि इस वक़्त लगता ये है कि उनकी हुकूमत में अमेरिका की मुखालफत बहुत ज़्यादा है। आज मदुरो के बेटे का भी एक बयान हर तरफ मौजूद है जहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि हम आपकी रिहाई के लिए पूरी कोशिशें करते रहेंगे। ये वही मुतालबा था जो कि आज हमने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबरान से भी सुना। क्या अमेरिका मदुरो को रिहा करेगा?
مجھے نہیں لگتا۔ کیا اس کے اوپر دوبارہ جنگ ہوگی؟ یہ بھی مجھے نہیں لگتا۔ کیا امریکہ دوبارہ وینزویلا کے خلاف کارروائی کرے گا؟ بالکل اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکی حکومت اب بار بار یہ صاف جو ہے انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وینزویلا کے خلاف تازہ فوجی کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو اس پر نظر ہوگی، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس واقعے نے دنیا کو اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ شاید عالمی سیاست پر بھی آنے والے دنوں میں اس کا خاصا اثر نظر آئے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔